Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम ब्रदर हेगन की किताब से जो प्लान पर्पस एंड परस्यूट्स है उससे पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में है पेज नंबर 86 और अध्याय है अंग्रेजी में और हिंदी में मुझे नहीं मालूम पेज नंबर क्या है, पर अंग्रेजी में 86 है और अध्याय है डांसिंग इन द स्पिरिट और डांसिंग इन द फ्लैश और इन द स्पिरिट, शरीर में या आत्मा में नाचना। हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। So Brother Hagin is talking. Also God's word had instructed the Israelites that the service of the sanctuary belonged to the sons of Kohath. और परमेश्वर ने अपने वचन में यह भी निर्देश दिए हैं कि इस्राएलियों में से जो सैंक्चुरी जिस भवन की सेवकाई है अंदरूनी भाग की, वह कोहात के पुत्रों की है, कहात के पुत्रों की है। They were to bear the ark upon their shoulders, soldiers. Numbers 4 verse 15, 7 and 9, गिनती 4, 15 उसकी 7 और 9 आए कि उन्हें उस संदूक को अपने कंधों पर उठा के लेके जाना था। On their first journey, the oxen stumbled and shook the ark. उनकी पहली यात्रा में जो बैल थे वह ठोकर खाया और संदूक हिल गया। When Uzzah put forth his hand and took hold of it. जब उजिया ने अपना हाथ उठा के तंबू को संभालने के लिए लगाया, the Lord broke forth upon him. तो प्रभु उस पर आ गया। दूसरा सैमुएल 2 Samuel chapter 6 verse 6 to 7. And when they come to Nashon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it, and the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. The next attempt to transport the ark was successful. जो उन्होंने अगली बार संदूक को लाए साधन इस्तेमाल किया, वह सफल हुआ। David handled the ark, God's presence according to God's plan. दाऊद ने परमेश्वर के संदूक को, जो परमेश्वर की उपस्थिति का संदूक था, उसे परमेश्वर की योजना के अनुसार संभाला। And David received God's blessing. तब दाऊद ने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया। Living under the old covenant, पुराने नियम के वाचा में रहते हुए, he did indeed dance with all his might. उसने हालांकि अपने पूरे बल से नाचा before the ark of the presence of the Lord, प्रभु की उपस्थिति के संदूक के सामने। Later, बाद में, David's son, दाऊद का बेटा Solomon built the house of the Lord at Jerusalem in the Mount Moriah. दूसरा 2 Chronicle chapter 3 verse 1, दूसरा इतिहास उसकी 3 की 1 आयत में सुलेमान ने परमेश्वर के घर को जेरूशलेम में मोरिया पहाड़ पर बनाया, where the presence of the Lord was shut up in the holy of holies, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति महापवित्र स्थान में बंद की गई। As I already mentioned, जैसा मैंने पहले से ही जिक्र कर चुका हूँ, much pure gold was used in what was then the house of the Lord in the earth. कि उस समय धरती पर परमेश्वर के घर में बहुत शुद्ध सोना इस्तेमाल किया गया उस भवन को बनाने के लिए। Like Moses before him, जैसे मूसा ने उससे पहले, Solomon finished the work. सुलेमान ने काम को पूरा किया। 2 Chronicle chapter 2, chapter 5 verse 1, 7, 13 to 14. दूसरा इतिहास 5वां अध्याय उसकी 1, 7 और 13 से 14 आयत।
Thus all the work of the Solomon made for the house of the Lord was finished. And the priests brought in the ark of the covenant of the Lord unto his place. It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpet and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, and for his mercy endureth forever. Thank you, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. That then the house was filled with the cloud, even the house of the Lord. तब भवन मंदिर से भर गया, हालांकि परमेश्वर का भवन भी, so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. And again, as happened with Moses, जैसे कि मूसा के साथ हुआ, tabernacles, तंबू में, the first dwelling place of God in the earth, जो धरती पर पहला परमेश्वर के रहने का स्थान था. The glory of the Lord also filled Suleiman's temple. उसी प्रकार सुलेमान के मंदिर में भी परमेश्वर की महिमा भर गई. The Lord instituted for Israel what he called my feast. Leviticus chapter 23 verse 1 to 2. व्यवस्था उसकी 23 1 से 2. परमेश्वर ने जैसे पहले से इस बात को निर्धारित कर दिया था, जिसे उसने कहा मेरे पर्व. There were certain requirements for the men of Israel in keeping these feasts. इज़राइल के पुरुषों से एक विशेष, उनसे विशेष मांग थी इन उत्सवों या इन त्योहारों को मनाने की. 3 times in the year all thy males shall appear before the Lord God. Exodus chapter 23 verse 17. साल में 3 बार तेरे सारे पुरुष यहोवा की उपस्थिति के सामने उपस्थित हों. निर्गमन उसका 23 उसकी 17. In order for them to appear, परमेश्वर के सामने पेश होने की जो के लिए, before the Lord God, प्रभु परमेश्वर के सामने, they had to go where the ark of God was. उन्हें वहां जाना पड़ता था जहां परमेश्वर का संदूक हुआ करता था. These 3 feasts are referred to in the original Hebrews of Exodus chapter 23 verse 17 as regalism. अब मुझे regalism का मतलब नहीं मालूम क्या कहा गया इसे है, हिंदी में क्या है? रेगुलिज्म ही लिखा है. जो निर्गमन 23:17 में ये जो 3 त्योहारों का जिक्र है, उन्हें इब्रानी मूल भाषा में यथार्थवाद कहा जाता है. Regals is the Hebrew word for foot. जो रीगल इब्रानी भाषा में शब्द है वह पैर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Regalism is the plural feet. जो रीगलिज्म है वह बहुवचन है पैरों के लिए. रीगल पैर, एक पैर, रीगलिज्म 2 पैर, यानी कि पैरों.
In other words, दूसरे शब्दों में, you were to take your physical feet and walk to where God's presence was. दूसरे शब्दों में इसका अर्थ कि आपको अपने शरीर को, पैरों को लेकर चलकर जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां चल कर आना है. That is why they had to go to Jerusalem to worship God. इसीलिए उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए जेरूशलेम जाना पड़ता था. After the building of Solomon's temple, सुलेमान के मंदिर को बनाने के बाद, because then the Holy Spirit of God was kept shut in the Holy of Holies in Solomon's temple in Jerusalem. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति महापवित्र स्थान में जो सुलेमान का मंदिर था यरूशलेम में, उसमें बंद थी. Nobody dared approach that Holy of Holies except the high priest. महायाजक के अलावा कोई उस महापवित्र स्थान में जाने की हिम्मत भी नहीं करता था. And he did so only under great precautions. इसलिए वही यानी कि महायाजक ही करता था, बहुत बचाव के साथ, सावधानियों के साथ. से आप और भी बोलेंगे प्रिकॉशन, बहुत सावधानियों के साथ. अदरवाइज ही वुड फॉल डेड, नहीं तो वो भी मर जाता था वहां पे. बहुत सावधानी बरतता था वो. But when Jesus died on the cross, पर जब यीशु क्रूस पर मरा, the New Testament tells us, तो नया नियम हमें बताता है, the veil of the temple was rent in twain from the top of the bottom, from the top to the bottom. कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक दो भागों में बंट गया या फाड़ दिया गया. मत्ती उसकी 27 की 51 है, Matthew chapter 27 verse 51. God no longer would dwell in a temples made with the hands. परमेश्वर अब हाथ के बनाए हुए तंबुओं में और नहीं रहता था. After the death, burial, resurrection and ascension of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने और उसके ऊपर उठाए जाने के बाद, the epistle written to the church reveal that we, the church, are now the house of God. तो पत्रियां जो कलीसिया को लिखी गई वह इस बात को प्रकट करती हैं कि हम जो कलीसिया हैं परमेश्वर का घर हैं. अब हम परमेश्वर का घर हैं. Amen. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Know you not that you are temple of God? Know you not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 2 Corinthians chapter 6:16. And what agreement hath the temple of God with the idols? For you are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. But Christ as a son over his own house, whose house are we? 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground
of the truth. Now, through His Spirit, God lives in men, not in man-made buildings. अब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मनुष्यों में रहता है, मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में नहीं. David living under the old covenant, दाऊद जो पुराने नियम की वाचा में रहता था, danced with all his might before the presence of the Lord, प्रभु की उपस्थिति के सामने अपने पूरे बल से नाचा. Today, living temples of the living God dance in the Spirit. आज परमेश्वर के जीवते मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा में नाचते हैं. मैं फिर से कहूं, आज जीवते परमेश्वर के जीवते मंदिर आत्मा में नाचते हैं. क्या है आज? क्या है? जीवते परमेश्वर के जीवते मंदिर आत्मा में नाचते हैं. मैं फिर से कहूंगा, जीवते परमेश्वर के जीवते मंदिर आत्मा में नाचते हैं. हालेलुया. We need to get the difference clear in our minds between the Old Testament worship done in the flesh and the New Testament worship done in the Spirit. हमें अपने मन में इस बात का जो फर्क है उसे बहुत साफ करना है कि पुराने नियम में आराधना शरीर में की जाती थी और नए नियम में आराधना आत्मा में की जाती है. There is a difference between dancing in the spirit and putting on a show in the flesh, or dancing to keep time to the music. आत्मा में नाचने का और शरीर में एक दिखावा करने का या संगीत की रिदम के साथ नाचने में फर्क है. When you are truly dancing in the spirit, जब आप सचमुच आत्मा में नाचते हैं, you don't even need to have a music. तब आपको संगीत की भी जरूरत नहीं होती. Many people in the church services are just dancing to the music. बहुत से लोग कलीसिया की सभाओं में संगीत पर नाचते हैं, बस संगीत के अनुसार. Maybe you have jumped around a little, like some people do to keep time with the music. हो सकता है आप उसी तरह कूदते हो जैसे थोड़े बहुत छोटे लोग संगीत के साथ कूदने लगते हैं. But that is not dancing in the spirit. वह आत्मा में नाचना नहीं है. That is substituting brass for a gold. यह सोने के बदले में पीतल है. You don't have to have a music to dance in the spirit. आपको आत्मा में नाचने के लिए संगीत की जरूरत नहीं है. Neither do you need to have people present to watch you dance, because your dancing is not a production for men's eye. Wow. But an expression of your heart towards God. ना ही आप लोगों के लिए नाचते हैं, क्योंकि आपका नाचना लोगों की आंखों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अपने दिल से परमेश्वर के प्रति एक हाव भाव है. आप समझ गए? आपका नाचना लोगों की उपस्थिति के लिए, उनकी आंखों के लिए प्रस्तुति नहीं है कि आप उनके लिए नाच रहे हैं, पर आपका नाचना परमेश्वर के लिए अपने हृदय का हाव भाव है. थैंक यू होली स्पिरिट. ओ गॉड, यू हेल्प अस. पिता, तू हमारी मदद कर कि हम आत्मा में नाचें, शरीर में नहीं.
और हम एक सही उदाहरण सेट करें प्रभु जी, नॉट फॉर पीपल बट फॉर यू, एक्सप्रेशन ऑफ आवर हार्ट टुवर्ड्स यू, हमारे हृदय का हाव भाव तेरे प्रति प्रभु जी। हम पीतल नहीं बल्कि सोना, शुद्ध सोना चढ़ाएं। हमारा गाना भी, हमारा बजाना भी, हमारा स्तुति करना, आराधना करना शरीर का नहीं बल्कि आत्मिक। Thank you, Lord. I have heard about some churches that are holding a dancing classes to teach people to dance in order to worship God. मैंने कुछ कलीसियाओं के बारे में सुना है कि वह नाच की क्लासें लगाते हैं, लोगों को नाचना सिखाते हैं कि परमेश्वर की आराधना में कैसे नाचा जाता है। Bless their heart, God. You can't teach people to dance to worship God any more than you can teach people to speak with the tongues to worship God. जैसे आप लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए अन्य भाषा नहीं सिखा सकते, उसी रीति से आप किसी को परमेश्वर की आराधना करने के लिए नाचना नहीं सिखा सकते। मैं फिर से दोहराऊंगा, जैसे आप अन्य भाषा में बोलने के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोगों को अन्य भाषा बोलना नहीं सिखा सकते, उसी प्रकार आप लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए नाचना नहीं सिखा सकते। Someone may say, हो सकता है कोई ऐसा कहे, well, you can teach people to sing. कोई ऐसा कह सकता है कि भाई आप लोगों को गाना तो सिखा सकते हैं। Yes, हाँ, but there is a scripture in the New Testament which speaks of singing in worship to God. क्योंकि उसके लिए नए नियम में वचन है जहां पे आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए गा सकते हैं। यहां पे बोला गया वचन न्यू टेस्टामेंट, गाया जा सकता है आराधना करने के लिए। Even though people may practice to sing in a church, हो सकता है कि लोग कलीसिया में अभ्यास करें गाने के लिए। They don't sing the devil's song in the worship service. वह आराधना में शैतान के गीत नहीं गाते। Also, did you ever notice this? क्या कभी आपने इस बात पर भी ध्यान दिया? When someone is singing, कि जब कोई गा रहा है, whether they are singing with a choir or singing a solo, चाहे वह क्वायर में गाते हो, चाहे वह अकेला गाता हो, you can close your eyes, get your mind off the person and focus your attention on worship God. आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपना ध्यान उस व्यक्ति से हटाकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की आराधना करने में लगा सकते हैं। चाहे जब कोई अकेला गाता है या कोई क्वायर गाती है, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं उस समय। But you can't close your eyes and worship God when someone is performing a dance. पर जब कोई नाच रहा होता है तब आप आंखें बंद करके परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। All your attention is focused on them. तब आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर होता है। Thank you, Lord God. Teaching people to dance in the spirit is no more than cheap brass. लोगों को आत्मा में नाचना सिखाना एक घटिया पीतल से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, लोगों को आत्मा में नाचना सिखाना घटिया पीतल से बढ़कर नहीं है। Hallelujah. Can you imagine having a class to teach people to speak with tongues? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ऐसी एक पाठशाला करो जिसमें लोगों को अन्य भाषा बोलना सिखाएं? You can't teach people how to speak with tongues.
आप लोगों को नहीं सिखा सकते कि कैसे अन्य भाषा में बोला जाता है. You can teach them how to be born again, and you can teach them how to yield to the Holy Spirit. आप लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसे नया जन्म पाया जाता है. आप लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा के अधीन हुआ जा सकता है. But the Holy Spirit is the only one who can give them utterance. और पवित्र आत्मा एक मात्र है जो उन्हें आभार देता है, बोलने की शक्ति देता है. People are trying to worship God in the church with interpretive dance and ballet. अब मुझे इस इंटरप्रेटिव का मतलब नहीं मालूम, पर लोग कलीसियाओं में बैलेट और इंटरप्रेटिव डांस करके परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं. फ्रेंड्स, मित्रों, you can't interpret the power and a move of God with a dance. आप परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के चलन को नाच के द्वारा अनुवाद नहीं कर सकते. मैं फिर से कहूंगा, आप परमेश्वर की सामर्थ्य और चलन को नाच के साथ अनुवाद नहीं कर सकते. There is no scripture for that. उसके लिए कोई भी वचन नहीं है. That is a substitute brass for a gold. वह तो सोने के बदले में पीतल है. The things of the Spirit can only be interpreted by the Spirit. आत्मा की बातें केवल आत्मा के द्वारा अनुवाद की जा सकती हैं. And the Holy Spirit has plainly set forth the ways. पवित्र आत्मा ने बहुत साफ उन रास्तों को रख दिया है. He demonstrates himself in 1 Corinthians chapter 12. वह अपने आप को पहला करंथियों 12 अध्याय के में प्रकट करता है. The full import and blessing of God cannot and will not rest upon us as long as we substitute brass or gold in the temple of the Lord. परमेश्वर की पूरी आशीषों को हम अपने जीवन में तब तक नहीं पा सकते, पूरी सुविधाओं को हमारे जीवन में नहीं पा सकते, या तब तक हमारे जीवनों में वह नहीं आ सकती जब तक हम परमेश्वर के मंदिर में सोने के प्रति बदले में पीतल लाते हैं. Many dancers and even their ministers will say they are worshiping God. बहुत से नाचने वाले और हालांकि उनके सेवक भी यह कहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. But if they were sensitive to the Holy Spirit, पर यदि वह पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हैं, they would tell that, तब वह बता सकेंगे, he gets grieved with the such fleshly display. वह ऐसे दिखावे के द्वारा शोकित होता है. I have been a guest in a service where the presence of God actually lifted when people began to perform those theatrical dances. मैं एक जगह पे मेहमान प्रचारक था एक सभा में, और मैंने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति उठ गई जब असल में लोगों ने शरीर में नाचना शुरू किया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फादर. पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं. हम आत्मा में प्रभु जी गाना और आत्मा में नाचना चाहते हैं, जैसे तेरा दास पौलुस कहता है, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा. पर उसने नहीं कहा कि मैं बुद्धि से नाचूंगा, उसने कहा मैं आत्मा से नाचूंगा और बुद्धि से, आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि में गाऊंगा. पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मा में आराधना कर सकें. हमें आत्मा में नाचना सिखा, शरीर में नहीं. हम सब कहीं ना कहीं इसमें चूकते हैं और सोने की जगह पीतल चढ़ाते हैं. हमारी सभाएं प्रभु पीतल नहीं बल्कि सोना लेकर आए तुझे. आई अंडरस्टैंड. मैं समझता हूं कि आराधना सोना चढ़ाना है,
और प्रभु हम तुझे शुद्ध शुद्ध सोना चढ़ा सके, क्योंकि यह हमारी आत्मा से आता है। जहां तू वास करता है वह सोने से भी उत्तम है, इस शरीर के धातु से कहीं उत्तम है। इसलिए वह सोना चेलों के पांवों में रखा गया। मैं धन्यवाद करता हूं। हम सबको प्रकाशन दे प्रभु जी, सिर्फ ज्ञान ही ना हो और आत्मा में प्रकाशन हो, तो आत्मा में नाचने का, आत्मा से भरने का, आत्मा में हंसने का, आत्मा में आराधना करने का, ताकि हम तेरे चलन और तेरे प्रगटीकरण को देख सकें। तो धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। मैं अपने आत्मा से भर दे, लोगों के लिए आशीष बना, द्वार खोल सुसमाचार प्रचार करने। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन एंड आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।